I'm Monica Soral from MA International School, Nayagaon. See, today we'll be taking your next book, that is Footprints Without Feet. From that, the first chapter, The Triumph of Surgery. Yes, see, Triumph of Surgery. It was written by James Herriot. Now, first let us know about the author first. Now, James Alfred Waite Herriot was an English veterinary surgeon and writer. Veterinary surgeon जो animals का doctor होता है वो. He was born on 3rd October 1916 in Sunderland, England. James Herriot was his pen name. उसका जो pen name था वो James Herriot था. वैसे उसका नाम था James Alfred Waite. Being a noted veterinary surgeon, he utilized his vast experience in writing stories about animals. He wrote a series of book of stories about the animals and their masters. James Alfred Waite, James Herriot, died on 23rd February 1995 at the age of 78. Now, he was a veterinary surgeon plus he was a doctor. He was a writer also. He used to write books. He had written many stories about him. Now, the theme of the story is what? A story, Triumph of Surgery. Now, what is Triumph of Surgery? Triumph actually का मतलब होता है विजय होना. मतलब किसी भी चीज़ में जो चीज़ कोई नहीं कर पा रहा वो जब कोई इंसान कर देता है तो उसको बोलते हैं कि ये तो इससे तो विजय पाली, मतलब इस चीज़ पे कोई भी नहीं कर पाया जो इसने कर लिया. तो दैट इज ट्रिम्फ ऑफ. नाउ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी इज व्हाट रिवॉल्व्स अराउंड एन इल डॉग नेम ट्रिकी एंड हिज मिस्ट्रेस. एक पैट डॉग था, ट्रिकी था उसका नाम. उसकी जो मिस्ट्रेस थी उसका नाम था मिसेस पैम्फ्री. द डॉग वॉज ह्यूजली फैट, हिज आईज वर ब्लड रेड एंड र्यूमी. मिसेस पैम्फ्री गेव हर मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, बॉल ऑफ हॉर्लिक्स. ना देखो, ये एक पैम्पर्ड डॉग था. देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैट डॉग्स का ख्याल बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखते हैं, बट जो ओवर चीज़ होती है वो भी ख़राब होती है. एंड दैट वे मिस पैम्फ्री वॉज डूइंग. शी वॉज ओवर व्हाट टू से, लाइक बहुत ज़्यादा लाड़ ओवर हो जाता है ना जब पैम्परिंग, वो चीज़ करती थी अपने डॉग के साथ. उसको दुनिया भर की चीज़ें खाना खिलाती थी, जबकि दैट वॉज नॉट नीडेड एक्चुअली फॉर दैट डॉग, बट शी यूज टू गिव हिम everything. Now these things are not actually required for him. Cod liver oil, ball of Horlicks, everything she used to give. Still Tricky had no energy. इतना सब देने के बाद भी वो डॉग कैसा था? बिल्कुल लेजी. उसमें बिल्कुल ताकत ही नहीं थी. एवरी टाइम ही यूज टू जस्ट स्लीप. ही वॉज टू लाई डाउन. क्यों होगा? जब ओवर ईटिंग हो जाती है तो वो उसमें कैसे होगा, वो एक्टिव कैसे रहेगा? सो दैट प्रॉब्लम वॉज टेकिंग प्लेस विद ट्रिकी ओवर हियर. Now what had happened, because of this overeating, he used to vomit also. But yet Miss Pumphrey, what she thought that God knows what has happened to the dog, why he is doing this way. I think he is not feeling well. She was not thinking that she is giving him overeating. Overeating was done with him. That she never used to think. Then Tricky, nothing to eat first 2 days, he except water. Now doctor, what he did? Now doctor, this I'm just telling you the theme. First, later on I will explain what had happened. This Dr. Herriot, he actually realized what was wrong with the dog, and then he helped Mrs. Pumphrey to bring him out from whatever he was suffering from. That was the triumph of surgery. Now we will know that what had happened with that dog. You know, here see the doctor. Now why the doctor was worried? Doctor was worried because Mrs. Pumphrey was very, very possessive about the dog, and she was giving him food every time. Every time he used to ask, she used to give. The dog wanted the chocolates, the dog wanted the cake, she used to give. She never realized that this is wrong for him. डॉग को हर चीज़ थोड़ी दी जाती है, बट मिसेस पैम्फ्री को क्या लगा कि नहीं, वो उसको चाहिए, उसको मांग रहा है ना आगे आके, तो वो दे देती थी. वो इतना लाड़ करती थी उनको कि जो भी मांगता था डॉग उसको दे देती थी, जो कि उसके लिए हार्मफुल था. अब डॉक्टर को ये रियलाइज़ हो गया कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी. See, the Dr. James Herriot is really worried. Tricky had become very fat. He looks like a bloated sausage. His eyes are red and rheumy. Mrs. Pumphrey is the mistress of the dog. She has given him malt, cod liver oil, and a bowl of Horlicks every night, but nothing works.
इतना सब ताकत वाली चीज़ें देने के बाद भी वो आलसी लेज़ी की तरह वो सोता रहता था। तो अगर तुम इतना खाना दे रहे हो तो उसको एक्टिव होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, तो वो चीज़ थी नहीं जो डॉग्स में होती है ना, वो भागते हैं एकदम एक्टिव होते हैं, वो चीज़ इसमें नहीं थी ट्रिकी में। अब वो चीज़ मिसेस पेम्फ्रे को रियलाइज़ नहीं हो रही थी कि ये क्या है, ये क्या प्रॉब्लम है, बट हेरियट वॉज अ डॉक्टर, ही न्यू दैट क्या प्रॉब्लम हो रही है इसके साथ। Now James Herriot advises Mrs. Pumphrey realize that Tricky's only fault was greed for food. अब जो डॉक्टर हैरियट थे उनको रियलाइज़ हो गया कि ये जो ग्रीड है ना, मतलब बार बार खाने की चीज़ों पे भागना और वो खाना ही खाते रहना पूरे टाइम, वो मिसेस पेम्फ्री ने उसकी आदत डाल दी थी, वो डॉग की आदत पड़ गई, तो एवरी टाइम वो कुछ ना कुछ खाने के लिए भागता था। तो वो चीज़ उनको पता चल गई कि ये ग्रीडी है खाने के पीछे। Dr. James Herriot advises Ms. Pumphrey that she must cut Tricky's food right now. She must give the dog some exercise. She must keep him on a very strict diet, otherwise he will fall ill. अब उन्होंने उनको समझाया कि इस डॉग को आप खाना जो आप इतना खिला रहे हो ना, वो कम कर दो, उसको डाइटिंग पे डाल दो, उसका ध्यान रखो, उसको एक्सरसाइज करो, उसको दौड़ाओ, जो डॉग करते हैं एक्चुअली वो सब करवाओ उसको। बट मिसेस पेम्फ्री तो बहुत पैम्परिंग वाली थी, वो तो सोचती थी अरे बेचारा मांग रहा है, मैं उसको मना कैसे करूं, ये उनकी मेंटालिटी थी। तो वो चीज़ सुन ही नहीं रही थी उनकी बात। ट्रिकी फॉल्स इल्स, आखिर में क्या हुआ, मिसेस पेम्फ्री ने डॉक्टर की बात नहीं मानी तो वो बीमार पड़ गया। Within a few days, Dr. Herriot received a call from Mrs. Pumphrey. She tells him that Tricky doesn't eat. अब ये प्रॉब्लम आ गई ना उनके साथ, वो बीमार पड़ गया और उल्टियाँ और वॉमिटिंग करने लग गया। बट व्हाट हैपेंड देन, you know what, he every time like he used to vomit, Mrs. Pumphrey was और उल्टी कर रहा है और भाग नहीं रहा, उनके यही चलता था दिमाग में कि ये तो कुछ भी नहीं कर रहा। डॉक्टर एडवाइसेस हर दैट ट्रिकी नीड्स टू बी हॉस्पिटलाइज। अब डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर को रियलाइज़ हो गया कि ये घर पे रह के तो इसका इलाज नहीं होने वाला, बिकॉज मिसेस पेम्फ्री नहीं करने देंगी जो वो चाह रहे थे, उसका इलाज जिस तरह से करना चाह रहे थे वो तो करने नहीं देती, क्योंकि वो तो उनका लाडला डॉगी था और डॉगी को कुछ भी परेशान करते तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने क्या सलाह दी कि वी हैव टू हॉस्पिटलाइज हिम। हॉस्पिटलाइज मतलब उसको हॉस्पिटल में लेके जाके वहाँ रखना पड़ेगा मुझे। So now he told that we have to take the dog to the hospital. Now Tricky at hospital. Now Tricky, what he did at the hospital? At the surgery, the household dogs surge around Tricky. He sees them lying motionless. A bed for Tricky is made in a warm, loose box for 2 days. No food is given to him, but plenty of water. On the second day, he starts taking some interest in the surroundings. On the third day, he begins to whimper. When he hears the dog in the yard, Tricky starts taking a walk around the balls, licking casually inside 1 or 2 of them. Now, Tricky का देखो आप, जैसे ही वो घर से निकला, and see the difference what made the difference over there. Tricky जो लेजी था, जो उठता भी नहीं था, he did the same thing over there also. The other dogs over there, he was not mixing up with them because he didn't know only ना that thing. वैसे फैमिली हमेशा उनको घर पे रखती थी और खुद ही के साथ वो ही खेलती थी उसके साथ, हर चीज़ वो ही करती थी, तो he didn't know how to mix up with the other dogs, other animals. Same thing happened over there. There other dogs were there. The dogs wanted to play with him, but he was not. He was just motionless. He used to just lie down lazily. He never used to get up. Then what the other dogs did, वो भी उसके पास आना बंद कर दिया दूसरे कुत्तों ने। उन्होंने क्या सोचा, ये तो कैसा डॉगी है पता नहीं, हमेशा लेजी की जैसे सोता रहता है, खेलता भी नहीं है। सो अदर डॉग्स दे डिडंट टेक इंटरेस्ट इन देम। अब ट्रिकी को क्या करा, उन्होंने एक अलग से बेड बनाया उसका एक वार्म बॉक्स में और वहाँ पर उसको रखते थे, वहीं उसको। अब इसके साथ यही किया उन्होंने, हैरियट ने बोला ही था कि इसको खाना मत दो, सो सेम थिंग ही डिड, ही स्टॉप्ड हिज फूड, खाना उसका बिल्कुल बंद कर दिया और खूब सारा उसको पानी पिलाया, वाटर। सी द क्योर हाउ ही डिड, पानी पिलाना ज़रूरी उन्होंने समझा, उन्होंने खूब सारा उसको पानी पिलाया, खाना सब बंद कर दिया। एंड देन जस्ट द डे व्हेन ही वॉज ब्रॉड, 2 days ही हुए थे खाना नहीं देके और पानी देके, सेकेंड डे में तो ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट। सेकेंड डे से ही उसमें फ़र्क आना शुरू हो गया, उसको इंटरेस्ट आने लग गया सराउंडिंग्स में। वो जो डॉगीज़ के साथ जो नहीं मिक्सअप हो रहा था उनके साथ वो थोड़ा बहुत मिक्स होने लग गया। अब वो घूमने लग गया, लोगों वहाँ पर इधर उधर भगने लग गया। सो थर्ड डे ही स्टार्टेड विम्परिंग विथ एंड हियर्स अ डॉग इन द यार्ड। और ट्रिकी क्या वॉक लेने लग गया और बाउल से वो लिक करने लग गया, वो सब उसको आता ही नहीं था। मिसेस पम्फ्री उसको जस्ट बैठे बैठे सब चीज़ दे देती थी, बट नाउ ही
न्यू दैट ही हैज टू गेट अप एंड गो नियर द बाउल एंड लिक द बाउल, उसमें से उसको पीना है पानी या उसको चाट के कुछ खाना है, वो चीज़ उसको वहाँ पर आई, वो ट्रेनिंग उसको वहाँ मिली. सो दैट ही स्टार्टेड. देन रैपिड प्रोग्रेस, नैन्सी एकदम से उसके इतनी जल्दी उसके फ़र्क आना शुरू हो गया. रिकीज प्रोग्रेस इज़ रैपिड. ही हैज़ नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, कोई भी ना इंजेक्शन लगाई इसको ना उसको दवा दी, ओनली प्लेंटी ऑफ वाटर, खाना कम करते ही इसमें इतना फ़र्क आ गया. ही रन्स अबाउट द डॉग्स जॉइनिंग द फ्रेंडली बार्क्स. ही स्टार्ट्स फाइटिंग फॉर हिज शेयर ऑफ फूड एंड हंट्स रैट्स एट नाइट. Dr. Harriet tells Miss Pumphrey that Tricky is not in danger and recovering rapidly. Pumphrey starts bringing eggs 2 dozen at a time. Now जैसे ही हैरियट ने बोला ना कि अब ट्रिकी सही हो गया है, अब वो सबके साथ मिक्स भी हो रहा है, खेल रहा है, भग रहा है, इधर से उधर बार्किंग कर रहा है, एवरीथिंग ही इज़ डूइंग लाइक अ नॉर्मल डॉग ही इज़ बिहेविंग नाउ. पेम्फ्री तो बड़ी खुश हो गई और वो फटाफट उसके लिए एग्स परचेज करने चली गई. सी अगेन खाने का ही वो सोचती थी कि उसको खिलाऊँ. Built up his strength. Wine and brandy are given to improve Tricky's constitution. The doctor informs that Tricky has recovered and Mr. Pumphrey can collect him. फिर उन्होंने उनको फ़ोन करके उनको बोला मिसेस पम्फ्री को कि अब ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो गया है, नाउ यू कैन टेक हिम बैक होम. नाउ पेम्फ्री तो बहुत ग्रेटफुल हुई नेचुरली व्हेन हर डॉग, जो उसका बिल्कुल प्रिय था, बिल्कुल लाडला था, वो ठीक हो गया. शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी वॉज ग्रेटफुल. विद इन 2 weeks Tricky has been transformed into a flexible, hard muscled animal. He is stretched out in a great bounce. When the Tricky sees his mistress, he leaps and sails into her lap. As the car moves away, Mrs. Pumphrey leans out of the window. Her lips tremble with tears and shine her eyes. She says, "Oh, Mr. Harriet, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery." तब उसने बोला अपने डॉग को देख के, इतना अच्छा, इतना खिलता हुआ डॉग देख के, इतना मतलब एक्टिव, उतना एक्टिव हो गया था वो. सो देन शी सेड दैट दिस इज़ द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी. ये सर्जरी की विजय है. दिस इज़ द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी. थैंक यू.